Hello students, this is Professor Sanjeev Gupta. Today I am going to discuss about the flow-through pipes. In flow-through pipes, I am going to discuss about the what introduction of flow-through pipes, the value or the importance of Reynolds number in the case of flow-through pipes, and what is the major impact at the entrance region in the case of flow-through pipes. Flow-through pipes, generally there are two types of pipes are used, either circular or non-circular. In the case of non-circular, it may be rectangular shape, it may be that cubical shape. The major drawback in the case of flow-through pipe is frictional effects. Due to friction, its pressure drop and head loss during the flow-through pipes. This is a major drawback in the case of pipes. यदि आपका लिक्विड है तो जनरली हम यूज करते हैं दैट इज सर्कुलर शेप्स, एंड इन द केस ऑफ गैस यूज्ड जनरली non-circular cross-sectional shapes of pipe. यदि आपका small diameter pipes are usually referred to as a tubes. In the case of circular pipes, at the pressure difference between inlet and outlet is maximum. That is, and in the case of non-circular pipes, generally it is used in the case of heating and cooling system of building, where pressure difference is a small as compared to the circular pipes. रेक्टेंगुलर शेप का पाइप जनरली यूज किया था इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इसके मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन कॉस्ट आर लोअर एज कंपेयर टू द सर्कुलर पाइप्स. Hence the major advantage of rectangular pipes in the rectangular over the circular pipes is that pressure difference at the inlet and outlet is more in the case of circular pipes as compared to the rectangular pipes. Reynolds number, हमने आपसे बोला कि Reynolds number is a very important parameters which are generally used in the case of flow through pipes. हमने आपसे रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में डिस्कस किया था बाउंड्री लेयर थ्योरी में भी. यदि आपका फ्लो दैट इज लीनियर है तो दैट का लेमिनार फ्लो, यदि आपका फ्लो दैट इज जिगजैग है तो आपका कहलाएगा दैट इज टर्बुलेंट फ्लो. What is Reynolds number? It is the ratio of inertia force to the viscous force. यदि आपका फ्लो लेमिनार है तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसमें होगा विस्कस फोर्स. जल्दी इन द केस ऑफ लेमिनार फ्लो फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द turbulent flow, and in the case of turbulent flow frictional force is more as compared to the laminar flow. यदि आपका वेलोसिटी आपका फ्लो जो है यदि स्लो है तो इस कंडीशन में रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू भी आपकी कम होगी. यदि आपकी और उस कंडीशन में यदि आपका फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज मोर, उस कंडीशन में आपका रेनॉल्ड्स नंबर भी आपका बहुत ज्यादा होगा. यदि आपका जोन, हमने आपसे दैट इज लेमिनार टू टर्बुलेंट, यदि आपका जोन आपका चेंज होता है उस कंडीशन में ये डिपेंड्स करता है कि आपका दैट इज ज्योमेट्री कैसी है, मतलब आपका शेप कैसा है, पाइप दैट इज सर्कुलर है, नॉन सर्कुलर है या अदर शेप्स का है. सरफेस रफनेस जो आपके पाइप्स का दैट इनर सेक्शन की स्मूथ है या रफ है, वेलोसिटी फ्लो वेलोसिटी आपकी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड किस टाइप का है, तो इस कंडीशन में रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू भी आपकी चेंज होती है. Reynolds number at which the flow becomes turbulent is called the critical Reynolds number. यदि आपका लेमिनार से टर्बुलेंट में चेंज होता है उस कंडीशन में उस वैल्यू को बोलते हैं क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर. इन द केस ऑफ क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर इन द यदि आपका पाइप आपका सर्कुलर है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर 2300. फ्लो थ्रू नॉन सर्कुलर पाइप्स रेनॉल्ड्स नंबर ये बेस्ड ऑन दी हाइड्रोलिक डायमीटर. यदि आपका पाइप नॉन सर्कुलर है उस कंडीशन में वैल्यू डिपेंड करती है रेनॉल्ड्स नंबर की दैट इज हाइड्रोलिक डायमीटर में, दैट इज DH equal to 4AC upon P, where P that is a perimeter, weighted perimeter, and AC that is cross sectional area of the pipe. D is the hydraulic diameter in the case of circular pipe, that is DH equal to D. In the case of square duct, area यहाँ पे होता है A square, then DH equal to A. In the case of rectangular duct, that is DH equal to AB upon A plus B.
यदि आपका एक हमने डाई इंजेक्शन लिया, यदि आपका फ्लो लेमिनार है तो आपको एक लीनियर पाथ दिखता है। यदि आपका यही चीज़ आपका जैसे हमने एग्जिट किया तो उस कंडीशन में आपका जो फ्लो आपका दैट इज जिगजैग दिखाएगा। उस कंडीशन में दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। दैट इज द एग्जांपल, दैट इज फिगर रिप्रेजेंट द लेमिनार एंड टर्बुलेंट। द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, ये आपका लेमिनार फ्लो है तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 20 अप्रॉक्सीमेट 2300, और आपका यदि 4000 से ज़्यादा है तो आपका कहलाएगा टर्बुलेंट फ्लो। बिटवीन 2300 एंड 4000 दैट इज ट्रांजिशन जोन या ट्रांजिशन फ्लो। What is the difference between laminar and turbulent flow? The difference between laminar and turbulent flow, यदि आपका flow that is smooth है, that is smooth streamlines है, that highly ordered motion में है तो आपका laminar कहलाएगा। आपका velocity fluctuation है, और आपका जो motion है disorder में है, the highly disorder है, that's called turbulent flow. Path lines, each particles are parallel. इस कंडीशन में particles are in irregular path lines. जो velocity होगा that is low velocity and high velocity in the case of turbulent flow. विस्कोसिटी प्लेज, इस कंडीशन में हमने आपसे पहले ही बोला कि इन द केस ऑफ लेमिनार फ्लो विस्कोसिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, एंड इन द केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो दैट इनर्शिया फोर्स, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आपका फ्रिक्शनल वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाती है। उस कंडीशन में इनर्शिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल्स। वेलोसिटी इन द केस ऑफ लेमिनार फ्लो जो आपका वेलोसिटी प्रोफाइल होगा दैट इज पैराबोलिक, और आप यहाँ की वैल्यू क्या होगी दैट इज लॉगरिथमिक कर्व होगा। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, that entrance region. At the entrance region there are so many profiles में यहाँ पे हमने दो profiles को लिया है। एक आपका velocity boundary layer को represent कर रहा है, दूसरा आपको represent कर रहा है that is velocity profile. velocity boundary layer, इस कंडीशन में हमने आपसे पहले डिस्कस किया है कि velocity boundary layer में सबसे important at the entrance region that is shear stress maximum and thickness of boundary layer is very small. जैसे जैसे आपका लेयर, जैसे डिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा उस कंडीशन में shear stress आपका रिड्यूस होगा और आपका बाउंड्री का थिकनेस भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। हमने इस रीजन को दो दैट इज हाइपोथेटिकल बाउंड्री सरफेस डिवाइड इनटू फ्लो इन टू रीजन्स। एक है आपका बाउंड्री लेयर रीजन्स इन विच विस्कस इफेक्ट एंड द वेलोसिटी चेंजेस आर सिग्निफिकेंट, एंड दूसरा आपका है इरोटेशनल या फ्लो रीजन इन विच फ्रिक्शनल फोर्स को हमने यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया है। द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन द रेडियल डायरेक्शन। वेलोसिटी को हमने दैट इज वेलोसिटी हम यूज कर रहे हैं दैट इज एवरेज, और फ्रिक्शनल फोर्स को भी हमने यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया है। The thickness of boundary layer increases in the flow direction until the boundary layer reaches the pipe center and thus fill the entire pipe as shown in figure। already हमने आपसे बात कर चुके हैं कि region from the pipe inlet to the point at which boundary layer merge at the center line is called the hydrodynamic entrance region या hydrodynamic entry length। that is hydrodynamic entrance region is called also called hydrodynamic एंट्री लेंथ। जैसे आपका प्रोफाइल जो होगा, जैसे आपके ऐसे कुछ जब कंडीशन आपका ऐसा हो जाए कि वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, प्रोफाइल अप्रॉक्सीमेट आपका कांस्टेंट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं फुली डेवलप्ड वेलोसिटी प्रोफाइल। द रीजन बियॉन्ड द इंटरेस्ट रीजन इन विच द वेलोसिटी प्रोफाइल इज फुली डेवलप्ड एंड रिमेन्स अनचेंज। अब आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोडायनामिकली फुली डेवलप्ड रीजन। In the case of hydrodynamic fully developed, the temperature profile remains unchanged. That means कि आप उस टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस आपके नहीं आएंगे, और उस कंडीशन में जो आपका वेलोसिटी प्रोफाइल होगा दैट इज पैराबोलिक, और फ्लो आपका दैट नहीं होगा लेमिनार फ्लो। यदि आपका फ्लो टर्बुलेंट है तो उस कंडीशन में हम ये मानते हैं कि जो आपका प्रोफाइल होगा दैट इज फ्लैटर, ये आपका फ्लोर होगा। ये फिगर रिप्रेजेंट करता है कि आपका यदि आपका फुली डेवलप्ड कंडीशन है उस कंडीशन में आपका जो शियर स्ट्रेस होगा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी प्रोफाइल में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो शियर स्ट्रेस में भी आपकी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मींस शियर स्ट्रेस रिमेन्स कांस्टेंट इन द केस ऑफ फुली डेवलप्ड हाइड्रोडायनामिक फुली डेवलप्ड रीजन। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी बाउंड्री लेयर एट द एंट्रेंस द शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम। जैसे जैसे आपका लेंथ इंक्रीज होगा, दैट इंटरेस्ट रीजन लेंथ इंक्रीज होगा, उस कंडीशन में शियर स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपका रिड्यूस हो जाएगा और बाउंड्री लेयर थिकनेस आपकी इंक्रीज हो जाएगी। Therefore the pressure drop is higher in the interest region। तो इस कंडीशन में आपका यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप भी मैक्सिमम होगा। इंटरेस्ट रीजन ऑफ पाइप, द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रीजन इज always to increase the average friction factor of the entire pipe। This increase may be significant for short pipes but is
नेग्लिजिबल फॉर लॉन्ग वंस। प्रेशर ड्रॉप आपका इंटेंस में आपका शियर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो प्रेशर ड्रॉप भी इस कंडीशन में आपका बहुत ज़्यादा होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।